Welcome to my channel, guys. Shiv Shakti Kali Tara Dolven Tarot. I hope you all are in good mood and enjoyed your Sunday. All right. So today is actually महाशिवरात्रि. ठीक है, एक महाशिवरात्रि का पर्व होता है. ठीक है, अब वो क्या है? शिव शक्ति काली तारा डोलवन टैरो, बिकॉज इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ शिव शक्ति एंड काली तारा. ठीक है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट लाइक महाशिवरात्रि मतलब द आदि शक्ति. ठीक है ना, पराशक्ति काली, अंत से ही आरंभ और आरंभ में ही अंत. ठीक है, द पावर ऑफ शून्य. ठीक है, www.shunyakreates.com. ओके, सो इट्स ऑल अबाउट दिस ऊर्जा. ठीक है, सो गाइज अभी हम जो है समझ रहे हैं, ठीक है, कि प्लैनेट्स अभी हम ऊपर के चक्रास पे काम कर रहे हैं, विच इज़ द गैलेक्टिक चक्रा एंड द स्टेलर गेटवे चक्रा. ठीक है, कि ये धरती किस तरह से काम कर रही है और यूनिवर्स कैसे एक्सपैंड हो रहा है. ठीक है, सो स्पेशल थैंक्स टू ऑल द सुप्रीम हाई डिवाइन पावर्स, द पॉजिटिव सुप्रीम हाई डिवाइन पावर्स, एंड जो भी मेरे चैनल से भी जुड़ा है. ठीक है, वो अर्थ एंजल है, स्टार सीड है, और कुड बी बोथ. दे वी हैव अ स्पेशल फ्रीक्वेंसी गाइज. ऑलराइट, वी आर हेयर टू डू द अल्कमाइजेशन. वी मैनिपुलेट द नेगेटिव एनर्जी इनटू द पॉजिटिव एनर्जी. ठीक है, सो गाइज आज जो है मैंने सारा दिन थोड़ा रेस्ट लिया. ठीक है, मैंने अपनी नींद पूरी, ठीक है, मेरी नींद हुई अच्छे से. ठीक है, और बिकॉज फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल बैलेंस इज नेसेसरी. ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, माइंड बॉडी स्पिरिट का बैलेंस, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. ठीक है, संडे के दिन हम खुद को तैयार करते हैं मंडे के लिए. ठीक है, अगले दिन के लिए. तो मैंने आज बेसिकली वही किया सारा दिन. ठीक है, माई पीस इज नॉन नेगोशिएबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. माई हैप्पीनेस इज ऑन द टॉप. ऑलराइट, so we always use our high priestess urja, which is the enhanced intuition powers. Okay, so that we can raise the vibrations of this mother Gaia, and we come to know that how the universe is expanding and how does the mother Gaia works. All right, तो ये सब मैंने किया. एंड आज के दिन मैंने थोड़ा सा जो है गाइस, मैंने अपने चैनल पे शिव शक्ति काली तारा डोलवन टैरो पे, ठीक है, मैंने जो जहाँ से मैंने टैरो की विद्या सीखी थी, ठीक है, उसका मैंने सर्टिफिकेट जो है आज वहाँ पे चिपका दिया. ठीक है, सो अगर किसी को ऑथेंटिसिटी पे चेक करना है, ठीक है, तो चेक द ऑथेंटिसिटी एंड चेक द लॉयलिटी ऑफ दिस चैनल. सो प्लीज़ चेक द सर्टिफिकेट. ओके, कि आई एम अ प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर. ऑलराइट, I'm a professional tarot card reader and I do the alchemization. I did the ancestral healing and the lineage is free. That's how I'm revealing the inner talents and wisdom. And thanks to my past 7 life positive ancestors, all the angels and archangels, and special thanks to Mother Gaia. Special thanks to all the spirit birds and all the spirit guides, and special thanks to the plant trees, alright, the spirit plants, and the special thanks to mangroves. So mangroves actually, they are the what? They are the base, all right? They are the power of this Mother Gaia. They protect the Mother Gaia. They help in soil erosion. They save the shelter, and they actually helps in global warming, all right? So special salute to mangrove trees, all right? Phoenix is rising up from the ashes. Feel the feeling of rising star, all right? So special thanks to all the spirit guides. Special thanks to my spirit guides. ठीक है, the origin thought, Aditi, Avalon priestess, Athena, hawk spirit, Hakina, and Mother Mary. Alright, special thanks to the dolphin spirit, the dragon spirit, and special thanks to the silver dragon, dolphin spirit, whale spirit, and all the whole animal kingdom. Alright, special thanks to dog spirit, the cat spirit, the dolphin spirit, the whale spirit, the dragon spirit, okay, the fire dragon spirit, and special thanks to all the 7 chakras, the 7 energy centers. Lam, Vam, Ram, Yam, Hum, Om, Aha. Okay. Special thanks to 7 planets, alright, and जो कि हमें अलाइनमेंट में हेल्प करते हैं. Planets has a limitless potential, guys. All right, we have understood in the last videos. ठीक है, special thanks to the Sat Sur, Saregama Padhani, okay, who has a limitless potential. Okay, numbers, numerical vibrations. The combination of planets and the stars is equal to numerical vibrations. ठीक है, तो लास्ट की वीडियो में हमने यही जाना था कि numbers has a sound frequency is equal to vibration, numerical vibration. Okay, and numerical vibration का
ठीक है, एक क्या होता है उसमें लिमिटलेस पोटेंशियल, ठीक है। जैसे सा है तो सा की एक म्यूजिक न्यूमरोलॉजी के सहायता से हमने जाना था अरियंट और अरिथमेटिक के ऊर्जा को लगा के लास्ट वीडियो में कि म्यूजिक न्यूमरोलॉजी हैज़ द एक उसमें क्या है, तो हमने म्यूजिक न्यूमरोलॉजी का यूज़ किया था यहाँ पे। म्यूजिक न्यूमरोलॉजी इज इक्वल टू सा इज इक्वल टू एक नंबर, ठीक है, सा इज इक्वल टू number 19. So this is music numerology. All right. So special thanks to music numerology and special thanks to all the angels and archangels: Archangel Chamuel, Archangel Metatron, Archangel Raphael, Archangel Michael, Archangel Gabriel, and Archangel Jeremiah. Archangel Jeremiah for I am the presence, Archangel Regal for the karmic justice, and Archangel Rizal for the to let us know that how the universe works. So Archangel Rizal is the keeper of the universe. All right. He helps us to let us know that how the universe is expanding. And Archangel Uriel, special thanks to Archangel Uriel, Archangel Ariel. Archangel Uriel is the golden light who actually helps us to let us know that how this Mother Gaia works. The golden light, GW, that's the Archangel Uriel. And Archangel Ariel helps us to let us know that Archangel Ariel is the protector of the Mother Gaia. All right. So Archangel Ariel basically protects the nature. Okay. Protects the animal, protects the plants, protects the nature. So he's the nature keeper, Archangel Ariel, and he used the elements wind, fire, and air. All right. And protect the physical, protect the Mother Gaia. All right. So that what does the Archangel Ariel. All right. So Archangel Uriel, and special thanks to Archangel Uriel, Archangel Ariel, and special thanks to Archangel Sandalphon, Archangel Zadkiel, and special thanks to Archangel Haniel. All right. Special thanks to all the angels and archangels who help us at this point of time. We are the ascended masters, the self-mastery. We are in the self-mastery journey. We are the soul awakening journey. Who am I? Self-awakening journey. And special thanks to all the spiritual masters. Okay. Special thanks to Master Shaolin, Master Buddha, and special thanks to shamanic healers. Special thanks to World Spirit. Okay. Who actually raised the vibration of the Mother Gaia we did the spiritual coding, the spiritual decoding. Okay. We actually lit the fire in water and we raise our thoughts. That's we did alchemization, transmutation. We transmute, okay, the negative energy into positive. Okay. और बड़े पैमाने पे shamanic healers, because we are the ancient seers. All right. So बड़े पैमाने पर इस तरह से जो है कलेक्टिव की ऊर्जाओं को रेज करते थे shamanic healers. So special thanks to shamanic healer, World Spirit. Okay. Transmutation and transition, transformation, teleportation, telepathy, and transcend the energies. So that's the process of alchemization. All right. And we do alchemize, and special thanks to my whole spiritual team, and special thanks to my whole spiritual team, and special thanks to the Star Guardian Angels. All right. Special thanks to Star Guardian Angels, and special thanks to Joan of Arc. Special thanks to Freya. Special thanks to Radhama. Special thanks to Archangel Michael. All right. And special thanks to Ma Baglamukhi, Ma Khagastra. Special thanks to Ma Baglamukhi, and special thanks to Ma Khagastra, Ma Lakshmi, and Ma Saraswati. And special thanks to Pamela Coleman Smith, who designed this lovely 78 tarot cards. All right, who are most popular and famous in this at this point of time, because it's Advait Vedanta. Who am I? All right. So it helps us to let us know, or to let us know that who am I की journey. ठीक है, मैं कौन हूँ. ठीक है. These cards helps us to connect with the causal body. हम अंदर तीन हैं: causal body, subtle body, and the gross body. So we ask the question to ourselves that who am I? As soon as we ask, then universe responds. All right, because that's the law of karma, and that's the universal laws, that how does this Mother Gaia works and how the universe is expanding. White light, golden light, white light. Thanks to blue Tarama, thanks to green Tarama, and special thanks to blue flame and the violet flame. Okay, blue flame and the violet flame. And special thanks to, wait guys, special thanks to all the, okay, my bad, sorry. Special thanks to
Alright, special thanks to Earth Magic, okay, and special thanks to Oracle. Alright, and so special thanks to Oracle, okay, the Earth Magic. Alright, so and special thanks, last but not the least, special thanks to all of my audiences, okay, who comes up on my channel, okay, they take their time and watch the videos, okay. तो जो भी अभी मेरे चैनल से अभी जुड़ रहा है, जिसकी फ्रिक्वेंसी अभी से अलाइंड है, तो वो मेरे वीडियोस अभी ऑटोमेटिकली उस तक ये वीडियोस पहुंचेंगे, ठीक है, बिकॉज वी आर द चोजन वंस, ओके. तो बहुत ही कम लोगों के पास ये अभी इज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, वीडियो जा रही है, ठीक है. सो वी आर कंसिस्टेंट, बट वी आर because we are the chosen ones and chosen souls, okay, chosen ones, and now we are revealing our inner talents and wisdom, okay, because we are getting the karma justice of our good karmas, okay. So thank you Archangel Regal once again for that. So अभी जिसको भी एक जस्टिस मिल रहा है, ठीक है, तो अभी ये जिसके पास वीडियो जा रही है, ठीक है, तो स्पेशल थैंक्स टू ऑल ऑफ माय ऑडियंसेस, ठीक है, जो ये वीडियो देख के उसको ये कुछ गाइडेंस उससे मिल रही है और वो उसे लाइक कर रहा है, ठीक है. अगर गाइडेंस मिल रही है गाइस, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो. एज सुन एज वी लाइक इट, वी एक्सचेंज द एनर्जीज एंड वी क्लेम द एनर्जीज, ठीक है, क्योंकि रिसीव करने के लिए हमें टैप इन करना पड़ता है लाइक को, ठीक है. और अगर तुम्हें कुछ वीडियो से गाइडेंस मिल रही है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल शिव शक्ति काली तारा डॉल टैरो. एज सुन एज यू सब्सक्राइब द चैनल, you will get the notifications of all of my future videos guys, okay, in a way that you will get to know that कि मैंने कौन सा नया वीडियो अपलोड किया है, so that you will connect to that. Alright, and please share it with your friends and family so that किसी तरह से ये जो वीडियो है उस ऊर्जा के पास पहुंच जाए जिसको इसकी ज़रूरत है, ठीक है. So as soon as you will do that, it will reach to that energy. Alright, and these tarot cards are the energy cards guys, okay, it's regardless of caste, creed and gender, ठीक है. तो ये कोई भी दे सकता है, जैसे सूरज की रोशनी हर धरती पे वहाँ पे पड़ती है, ऐसे ही टैरो कार्ड्स जो है दीज आर द रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, क्रीड एंड जेंडर, ठीक है. दीज आर द एनर्जी कार्ड्स. ऑलराइट, सो कल पैमेला का बर्थडे भी है, उसकी हम कल बात करेंगे. सो द पॉइंट इज दिस कि अभी जो है हमें ये करना ज़रूरी है, ठीक है. तो जो भी अगर इस ऊर्जा में है, ठीक है, अगर उसको उसके पास भी कोई ऐसी पावर्स रिवील हो रही हैं, तो उसको अभी क्या करना है, दिस पॉइंट ऑफ टाइम उसको अपना चैनल बनाना है, ठीक है. और चैनल बना के ऑनलाइन जो है शेयर करना है, बिकॉज द वर्ल्ड इज सेलिब्रेटिंग यू. विंड फाउंड यू. ऑलराइट, we did the ancestral healing, wind found you, and all the past 7 life positive ancestors are helping us because we are the spiritual transmitter. Angels work through us and we work through them, so special thanks to because we are the spiritual transmitters. So हमें जो है the world wants to see you, okay, the world is celebrating you, angels are applauding you. All right, all the angels and archangels and your whole spiritual team, you are spiritually guided and spiritually divinely protected ऊर्जा. So अपने विजडम को या अपने इनर टैलेंट्स को अभी शेयर करना, दिस इज द गाइडेंस. दैट्स हाउ, बिकॉज वी आर कनेक्टेड विद आवर सोल पर्पस, वी हैव टू कंप्लीट आवर सोल मिशन. वी आर प्लांटिंग द न्यू सीड्स राइट नाउ सो दैट वी कैन build a legacy, and we are building a new soul family tree at this point of time so that we can complete our soul mission. We are building a new soul community. All right, so जितना हम इसको शेयर करेंगे वैसे ही जो है हम अपने सोल पर्पस से अलाइन होके, बिकॉज वी आर द ऑथेंटिकल स्टार सीड्स एंड could be both, so we have a special frequency here. All right, so we need to actually do this at this point of time. It's very important, ठीक है, क्योंकि हमने जो है एक बहुत बड़ी अभी एंसेस्ट्रल हीलिंग को कंप्लीट किया है, ठीक है. सो एंसेस्ट्रल हीलिंग जब हम कर लेते हैं तो हम जो है बहुत एक डीप हीलिंग प्रोसेस से गुजरते हैं, ठीक है. हम जो है रूट कॉज तक जाते हैं, उसके कॉज को ढूंढते हैं, रूट्स में जाके, जड़ों में जाके, ठीक है. और फिर जो है हम उसका कारण ढूंढ के उसकी हीलिंग करते हैं. और फिर जब हम हीलिंग कर लेते हैं तो ऐसे ऐसे ही जब हम फिर उन ऊर्जाओं से हम कनेक्ट होते हैं, ठीक है. तो अब हमारे जो है सारे कर्मस जो है हमने क्लियर कर दिए हैं. वी आर द प्योर एंड डिवाइन सोल्स, ओके. सो अरिहंत और अरिथमेटिक और म्यूजिक न्यूमरोलॉजी की ऊर्जाओं से हम कनेक्ट होके अब आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है. वी आर द स्पिरिचुअल मास्टर्स, स्पिरिचुअल
we guide others. All right, that who am I? ठीक है. So angels work through us and we work through angels. Okay. So अभी जो है हमें ये जो है अपने चैनल बना के, because the world is celebrating you, the world wants to see you, you are the gift to the universe. All right, you are the high honor. My peace is non-negotiable. My happiness is on the top. My happiness is on the priority. Okay, no one can steal my happiness because I know that who am I? I'm the emperor. She knows I'm the emperor. She's a वो अब हम कौन सी ऊर्जाएं हैं? स्ट्रॉन्ग लीडर, ओके, ऑफ द प्रोटेक्टर ऑफ द मदर गाया, प्रोटेक्टर ऑफ द यूनिवर्स. एंड हाउ डज दिस मदर गाया वर्क्स, हाउ द यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग. ऑलराइट, सो थैंक्स टू मास्टर शॉलन वंस अगैन, मास्टर बुद्धा वंस अगैन, एंड थैंक्स टू ऑल द स्पिरिचुअल मास्टर्स, थैंक्स टू शमानिक हीलर्स एंड द वोल्फ स्पिरिट. सो गाइज, आज का वीडियो जो है मैं क्या लेकर आई हूँ बेसिकली, ठीक है. अभी जो है जैसे कि मैंने आज टैरो सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है. सो अभी जो है मैं एक बेसिक वीडियो डाल रही हूँ, अ वेरी वेरी बेसिक वीडियो, ठीक है. और बेसिक वीडियो क्या है कि बेसिक वीडियो ये है कि वी हैव पास्ड ऑल द टेस्ट्स, ऑलराइट, एंड दैट्स हाउ विन फाउंड यू, दैट्स हाउ यू आर गेटिंग द योर कर्मा जस्टिस, ओके, ऑफ योर गुड कर्मास, ठीक है. तो गाइज मैं ये बताना चाहती हूँ कि थोड़ा सा, वैसे तो मैंने अपनी जो है चैनल पे ये डाला है कि मैंने कैसे एंसेस्ट्रल हीलिंग करी और मैं चक्रा हीलिंग तक कैसे पहुँची, मैंने ये सब मैं यहाँ पे पहुँची कैसे बेसिकली, ठीक है. सो गाइज, हमारा ये फ़र्ज़ है कि हमने जो अचीव किया अब हम दूसरों तक ये पहुँचाएँ, ठीक है. अपनी यात्रा को दूसरों तक पहुंचाएं, ठीक है. हमने जैसे अपने गिफ्ट्स और अपने टैलेंट्स को रिवील किया है, ऐसे दूसरे भी जो है अनलॉक करें, ठीक है. बिकॉज एवरीथिंग इज़ इन आवर सोल, एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन आवर सोल, ठीक है. तो गाइस, होता क्या है कि जब भी हमारी ज़िंदगी में कोई चैलेंजेस आते हैं, ठीक है, जब भी हम किसी भी चैलेंज को फेस करते हैं, तो वो क्या होता है, एक तरह का टेस्ट, एक तरह का एग्जामिनेशन, ठीक है. भगवान क्या लेते हैं, हमारा टेस्ट, ठीक है. तो वो क्या है, एक तरह का एग्ज़ाम, ठीक है. अब उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए ना भगवान देखता है कि ये ऊर्जा इस एग्ज़ाम को क्लियर कैसे करती है, ठीक है. क्या ये सारे यूनिवर्सल लॉस को फॉलो करती है, क्या ये कर्मा जस्ट लॉ ऑफ कर्मा जो भी है, ये धरती काम कैसे कर रही है, ये धरती यूनिवर्स एक्सपैंड कैसे हो रहा है, क्या ये उससे इंटैक्ट रहती है, ठीक है. तो ये क्या है, दीज आर द लॉ ऑफ, दिस इज़ लॉ ऑफ कर्मा, दिस इज़ यूनिवर्सल लॉस, ठीक है. तो इसको जानना जो है बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है. अगर हमें किसी भी चैलेंज के रूट कॉज तक जाना है कि ये चैलेंज मेरी ज़िंदगी में क्यों आ रहा है, ठीक है. कई बार ऐसा होता है कि रिपीटेटिव चैलेंजेस आते रहते हैं, सेम टाइप के चैलेंजेस, लाइक रिपीटेटिव साइकिल्स, ठीक है. हमारी ज़िंदगी में सेम तरह के चैलेंजेस, हम उन्हीं चैलेंजेस को बार बार फेस करते हैं, ठीक है. वाई, ठीक है. एक चैलेंज का फिर हम दोबारा उसी चैलेंज में फंस गए, ठीक है. एक चैलेंज को हमने ख़त्म किया, फिर हम दोबारा उसी चैलेंज में फंस गए, ठीक है. तो गाइस, बहुत पहले क्या होता था कि जैसे कि जब जब इंसान की ज़िंदगी में चैलेंजेस आए, ठीक है, तो लोगों ने क्या किया, मंदिरों में बाहर उस चैलेंजेस का हल ढूंढना स्टार्ट किया, ठीक है. ऐसे जो है मंदिरों की स्थापना हुई गाइस, ठीक है. मंदिर बने, बाहर मंदिर बने, मस्जिद बने, गुरुद्वारे बने, ठीक है. लोगों ने जो है बाहर जो है उनके जो है हल ढूंढने शुरू कर दिए, ठीक है. वो एक तरीका सही है, दैट इज़ ऑल्सो राइट वे, ठीक है. लेकिन वो क्या है, खुद से कनेक्ट होने का एक ज़रिया, ठीक है. तो मेक श्योर कि सबसे पहले हुआ क्या गाइस, धरती पे मंदिर बनने शुरू हो गए, ठीक है. क्योंकि जब चैलेंजेस बढ़ने लगे इस धरती पे, ठीक है, तो फिर मंदिरों की स्थापना हुई, लोगों ने मंदिर में जाना शुरू कर दिया, तीर्थ लगाने शुरू कर दिए, ठीक है. कैसे किसी के घर में बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो गए, बीमारियां लग गई, किसी के घर में, धरती पे सबके घरों में यही चलता है, ठीक है. कहीं बीमारी हैं, कहीं एक्सीडेंट हैं, कहीं पे जो है मौतें हो रही हैं, बेवजह की, मतलब अभी मौतों का समय भी नहीं है, लेकिन जो है जवान मौतें हो रही हैं घरों में, ठीक है. व्हाट इज़ द रीज़न? तो लोग क्या करते हैं, फिर मंदिर बनाते हैं, ठीक है. चलो लेट्स बिल्ड अप अ टेम्पल, ठीक है. शायद हमें इस चैलेंज का जो ये घटित हो रहा है, शायद इसका जवाब हमें मंदिर से मिल जाए, ठीक है. तो फिर लोग मंदिरों में चले जाते हैं, ठीक है, ठीक है. मंदिर करते हैं, सारे तीर्थ कराते हैं, सब कुछ जो है आगे घर आ गए, ठीक है. लेकिन फिर भी एक और मौत हो गई, ठीक है, एक और जवान मौत हो गई,
एक और जवान जो है कुछ बीमारी लग गई, ठीक है, हल नहीं मिला। मंदिरों में सारे मंदिर हो गए, सारे, मैं कह रही हूँ सारे तीर्थ कराया इंसान, ठीक है, दुनिया का एक तीर्थ नहीं छोड़ा उसने, ठीक है, लेकिन उसे जवाब नहीं मिला। फिर भी वो चीज़ घटित हो रही है उसके घर, ठीक है, फिर वो कहीं और जा रहा है, एस्ट्रोलॉजर भटक रहा है बाहर, ठीक है, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहा है, किसी और के पास जा रहा है, किसी और गणितज्ञ के पास जा रहा है, प्लीज़ मुझे बताओ वाई, ठीक है, मेरे घर में ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे जो है मंदिर बने। तो ये ठीक है कि हम मंदिर जा रहे हैं, हम मंदिर का बेसिकली मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मंदिर का क्या मोटिव होना चाहिए गाइस, ठीक है, इंसान जो है खुद से कनेक्ट हो। अगर हम बाहर जा रहे हैं तो उसका मकसद केवल ये होना चाहिए कि मेरी जो है चेतना की शक्ति बढ़े, मैं खुद से कनेक्ट हूँ, ठीक है, ये मंदिर ना मुझ पे हावी हो जाए, ठीक है, ये मंदिर मुझसे ना बड़े हो जाए कहीं, ठीक है। तो क्या होने लग गया धरती पे, जब से ये अब क्या हो रहा है, मोस्टली धरती पे क्या है, मंदिर जो है लोगों पे हावी हो चुके हैं, ठीक है, इंसान जो है छोटा हो गया, मंदिर बड़े हुए हैं, ठीक है, अभी सब जगह धरती पे ये वाली ऊर्जा फैली हुई है, ठीक है, मंदिर बड़े हैं, इंसान छोटा है। इंसानों को लगता है कि मंदिर मुझसे ज़्यादा बड़े हैं, ठीक है, मैं बहुत छोटा हूँ, ठीक है, मैं मंदिरों से, मंदिर जो है मुझे बेसिकली, मंदिर मेरे पे हावी है, ठीक है, मुझे कुछ नहीं पता, मंदिर ही मुझे बताएगा, ठीक है। तो ये चीज़ गलत है, ठीक है। मंदिर में तुम जाओ, बेसिकली मंदिर क्या है कि मंदिर जो है बने हैं, ठीक है, मंदिर क्यों बने, ठीक है, इसका ये क्वेश्चन होना चाहिए कि मैं मंदिर में तो जा रहा हूँ, ठीक है, मेरे को सुकून मिल रहा है, ठीक है, लेकिन मेरे को मंदिर में जाके सुकून मिलता क्यों है, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है पूछना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये क्वेश्चन हम कहाँ पे डाल रहे हैं, अपने कारण शरीर में, क्योंकि हम अंदर 3 हैं, ठीक है, कैजुअल बॉडी, उसके बाद सटल बॉडी और फिर ग्रॉस बॉडी, ठीक है। मैं मंदिर तो गया, मेरे को थोड़ा सा वहाँ पे जो है सुकून लगा, ठीक है, मेरे को ऐसा लगा क्यों, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ से जो है तुम्हारी यात्रा शुरू हुई, ठीक है। फिर जो है उसके बाद मंदिर बने, ठीक, मंदिर के बाद फिर गाइस सेकंड स्टेप क्या हुआ, जब मंदिर जो है लोगों पे हावी हो गए, फिर आए कुछ ज्ञानी संत धरती पे, ठीक है, इसको थोड़ा सा उन लोगों को विद्या डालने के लिए, समझाने के लिए, उनको ज्ञान देने के लिए कि ये मंदिर बड़े नहीं है, मंदिर तुम पे हावी हो रहे हैं। तो फिर यूनिवर्स ने क्या किया, कुछ तो चोजन वंस, कुछ धरती पे संत वन भेजे तुरंत से, भक्ति में शक्ति, ठीक है, कि तुम अंदर से जुड़ो। तो कुछ स्पिरिचुअल मास्टर्स, शैमानिक हीलर्स, एंशिएंट सीयर्स, ये सब चीज़ें, टेक्निक्स जो हैं, ये सारी एकदम से आई मंदिरों के बाद में, ठीक है। स्पिरिचुअल मास्टर्स जब भी धरती पे आते हैं, वो हमें क्या करवाने आते हैं, बताने आते हैं कि मंदिर तुमसे ज़्यादा बड़े नहीं हैं, तुम्हारी शक्तियाँ सारी तुम्हारी सोल में है, ठीक है, अपनी चेतना की शक्ति से जुड़ो। जितने भी स्वामी परमाहंस योगानंदा, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, महर्षि दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की 1875 में, ठीक है। तो जितने भी ये स्वामी लोग आए, स्वामी परमाहंस योग, स्वामी मुकुंदानंदा, ठीक है, गौर गोपाल दास जो अभी जो है हमें ये बताते हैं कि हम कौन हैं, ठीक है, गौर गोपाल दास, गौरंगा दास प्रभु, ठीक है। तो ये स्पिरिचुअल मास्टर्स जो हैं, ये जो है सारे अद्वैत वेदांता, ठीक है, जो इस्कॉन टेम्पल में जो बड़े बड़े ये यज्ञ कर रहे हैं, ठीक है, निर्वाणा षटकम। तो ये सारी ऊर्जाएं बेसिकली क्या कह रही हैं कि तुम मंदिर से मंदिर तुमसे बड़े नहीं हैं, ठीक है, तुम्हारी चेतना की शक्ति, तुम खुद को जानो कि तुम हो कौन, ठीक है। तो फिर ये सारी शक्तियों ने क्या किया, धरती पे थोड़ा सा बैलेंस की ऊर्जाएं फैलाई, थोड़ा सा जो है वो जो बढ़ रही थी, जो कि भाई मैं मंदिर मुझसे बड़े हो गए, ठीक है, लोग भटक रहे थे इधर उधर, तो उन्होंने धरती की ऊर्जाओं को आके थोड़ा सा बैलेंस किया, ठीक है, थोड़ी सी रोशनी और फैलाई, रोशनी प्रज्वलित हुई, ठीक है, इन स्पिरिचुअल मास्टर्स, इन संत रविदास, जैसे जैसे धीरे धीरे आते गए, ठीक है, संत कबीर, मीराबाई जी, ठीक है, ये सारे जो भी एक हाई पावरफुल सोल्स थी, ठीक है, बिकॉज दे वर द अवेकन्ड वंस, दे वर द चोजन वंस, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया कि अवेकन हो, तुम कहीं भटक रहे हो, ठीक है, स्टार्ट अवेकनिंग, ठीक है, सेल्फ अवेकनिंग की जर्नी पे जाओ, सोल अवेकनिंग, अपनी सोल को अवेकन करो, खुद से क्वेश्चन करो कि तुम कौन हो, ठीक है, अपने कारण शरीर से जुड़ो, ठीक है। तो मंदिर में जाके फिर वो घर आ गए सारे लोग, लेकिन फिर भी एक मौत हो गई, ठीक है। तो फिर ऐसे ही स्पिरिचुअल मास्टर्स आए सारे, ठीक है, द हाई प्रोफिशिएंट स्कॉलर्स जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, मास्टर शाओलिन, मास्टर बुद्धा, ठीक है, इन सब लोगों ने क्या किया, ये बताया कि हमें जो है
खुद से जुड़ना। इन्होंने सब चीज़ों के मतलब बताने शुरू किए, ठीक है, क्योंकि लोगों ने जो है बाहर मूर्तियों में उन्होंने सब ने अपने अपने मतलब निकालने शुरू कर दिए। तो बहुत सारा जो है भटकन हो गई, भटकाव हो गया। सब ने किसी ने किसी का शिव का एक और मतलब निकाल दिया, किसी ने शक्ति का एक और मतलब निकाल दिया, किसी ने जो है काली का एक और मतलब निकाल दिया। हर एक इंसान ने अपने अपने मतलब जो है बनाने शुरू कर दिए, ठीक है। तो बहुत सारे मतलब हो गए, बहुत सारा भटकाव हो गया, ठीक है। तो एक जो है सच की स्थापना जो है करने के लिए जो है कि सत्य क्या है, सत्य से जुड़ो। लोग सत्य से जुड़ना भूल गए, ठीक है। तो जब सत्य से जुड़ना भूल गए तो उनको जो है रूट पता नहीं था कि प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है। हमें जो भी चैलेंज आ रहा है, भगवान जो है हमारा टेस्ट ले रहा है, हमें इस टेस्ट में पास होना है। तो वो टेस्ट में पास नहीं हो रहे थे इंसान, ठीक है। भगवान चाहता था कि वो जो हर इंसान है वो अपने टेस्ट को पास करे, ठीक है। और टेस्ट को पास कैसे करेगा? जब वो सत्य से जुड़ेगा, जब वो अपने खुद की चेतना से जुड़ेगा, ठीक है। मंदिर उस पर हावी ना हो जाए कहीं, ठीक है। मंदिर तो मैंने बनाए थे, ठीक है, जब एक टाइम पे मंदिर बने थे, क्योंकि उसका भी एक कारण था, क्योंकि उस समय मंदिरों की ज़रूरत थी, क्योंकि भटक रहे थे लोग। तो मंदिर की स्थापना उस समय हुई थी। लेकिन मंदिर बनने के बाद लोग और फिर वो मंदिर हावी हो गए और भटकन हो गई, ठीक है। तो फिर ये आए सारे स्पिरिचुअल मास्टर्स, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, बेसिकली आके जो है बहुत सारे एंशियंट सीयर्स थे, इन्होंने जो है अपनी स्पिरिचुअल डिकोडिंग की टेक्निक से जो है धरती मदर गाय की ऊर्जाओं को रेस किया किसी तरीके से, कि ये धरती कहीं इसकी वाइब्रेशंस बढ़ती रहे, ठीक है। तो फिर इन्होंने ये किया, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ फिर, ठीक है। तो इन्होंने ये बताया, फिर धीरे धीरे ये स्वामी जी, फिर यहाँ पे क्या हुआ बेसिकली ध्यान, ठीक है। फिर मेडिटेशन आया धरती पे, ठीक है। इन्होंने स्पिरिचुअल मास्टर्स ने बेसिकली हमें बताया क्या, कि सारे जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं इनके रूट कॉज में जाने के लिए सबसे पहला क्या है, ध्यान, ठीक है। तुम्हें मेडिटेशन से लगना है, ठीक है। मेडिटेशन, जितने भी ये स्वामी हैं, जितने भी ये जो योगी हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ध्यान, ठीक है। इन्होंने बताया कि चक्रा एनर्जी हील, चक्रा हीलर्स, ठीक है। चक्रा हीलिंग क्या होती है, ठीक है। हमें मंत्र चैंटिंग का मतलब क्या होता है, कौन से चक्रा को बैलेंस के लिए कौन सा हमें मंत्र करना होता है, ठीक है। तो गाइस इस तरह से जो है हर दिन एक नया टैरो डेक आ रहा है, ठीक है। एक नया टैरो निकलता है, ठीक है। क्यों निकल रहा है? क्योंकि धरती इवॉल्व हो रही है, ठीक है। धरती की ऊर्जा इवॉल्व हो रही है, इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। रेवोल्यूशन नहीं, क्रांति की बात नहीं कर रही मैं, क्रांति अलग चीज़ है, ठीक है। इवोल्यूशन अलग चीज़ है, ठीक है। इवोल्यूशन मतलब हम इवॉल्व हो रहे हैं, हम चेतना की शक्ति हमारी इवॉल्व हो रही है, दैट्स कॉल्ड इवोल्यूशन, ठीक है। सो इवोल्यूशन कैसे होता है, कि जब हम खुद से जुड़ते हैं, ठीक है। तो फिर इन स्पिरिचुअल मास्टर्स ने बताया कि ठीक है, मंदिर जो है वो सिर्फ एक ज़रिया है तुम्हें खुद से कनेक्ट होने का, ठीक है, कि तुम्हें खुद से कनेक्ट कैसे होना है। फिर क्योंकि लोगों को वहाँ से समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। फिर स्पिरिचुअल मास्टर्स आए, उन्होंने कहा कि वी आर द लाइट सीयर्स, ठीक है। लाइट सीयर्स मतलब वी आर द लाइट वर्कर्स, वी आर द एम्पैथ्स, ठीक है। तो कनेक्ट विद द लाइट, बी द लाइट, बी यू, ओके, गेट टू नो हु यू आर, ठीक है। फिर ये सारी विद्याएं उजागर हुई कैजुअल बॉडी की, हम अंदर भी 3 हैं और हम बाहर भी 3 हैं। बाहर भी 3 बोले तो ब्रह्म, ये सब चीज़ों के मतलब समझाए गए, ठीक है, इन अद्वैता मास्टर्स के जरिए, कि क्या कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के मतलब क्या है। लोगों ने सबके अलग अलग मतलब निकालने शुरू कर दिए, कोई कहाँ भटक रहा है, कोई किसने ब्रह्मा का क्या मतलब निकाल दिया, विष्णु का किसी ने क्या मतलब निकाल दिया, और महेश का किसी ने क्या मतलब निकाल दिया, ठीक है। तो इन्होंने सही मतलब बताने जो है लोगों को शुरू किए, कि इनके मतलब क्या है, जानो, खुद को जानो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं तुम्हें खुद से कनेक्ट करने के लिए, खुद को जानने के लिए, कि तुम्हारी सोल में ही जो है तुम्हारे चैलेंजेस के सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। इट्स ऑल इनसाइड यू, ठीक है। तुम्हें रूट कॉज तक जाना पड़ेगा, और रूट कॉज तक जाने के लिए तुम्हें खुद से एक क्वेश्चन करना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। कैजुअल बॉडी में एक क्वेश्चन जब तक तुम नहीं लगाओगे, तब तक तुम जितने सारे तीर्थ करो, घर आके एक और हत्या हो ही जाएगी, ठीक है। क्योंकि सॉल्यूशन बाहर मंदिरों में नहीं है गाइस, ठीक है। सॉल्यूशन कहाँ पे है, हमारे अंदर, हमारी सोल में ही सारे रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। हमें उन रिकॉर्ड्स को, हमें जो है अपने गिफ्ट्स को केवल अनलॉक करना आना चाहिए, ठीक है। और जैसे ही हम वो अनलॉक कर देते हैं ना, तो अनलॉक कैसे होते हैं, जब हम सारे जो भगवान के टेस्ट, जो हमारे भगवान ने हमारी ज़िंदगी में चैलेंज डाले, उसको हमने समझा, उसको हमने क्लियर कर दिया। और क्लियर कैसे किया, खुद को जान के, मैं कौन हूँ को जान के, ठीक है। जब हमने वो खुद को जान लिया, तो हमने
हमने रूट कॉज को देख लिया, और जब हमने रूट कॉज को जान लिया तो हमने वो चैलेंजेस की सारी जड़ को ही ख़त्म कर दिया, ठीक है, कि जहाँ से ये चैलेंजेस आ रहे थे, ठीक है। अब वो जो है चैलेंजेस सारी जड़ ख़त्म हो गई। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि अब हमने खुद को जान लिया, तो अब हम क्या कर रहे हैं, सारे गिफ्ट्स जो है हमें रिवील हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सोल जो है वो क्या हो गई, क्लियर हो गई। सोल की क्या हो गई, क्लेंजिंग, ठीक है, सोल की क्लेंजिंग हो गई। तो अब सोल की क्लेंजिंग होने के बाद सोल में जितने भी अंदर जो उसके गिफ्ट्स थे, ठीक है, सोल की जो इनर गिफ्ट्स थे, अब आत्मा में क्या है, केवल आत्मा क्या है, उसमें वो अविकारी है, अविनाशी, ठीक है। तो हमने जो है वो सब क्लियरेंस कर ली सोल की, ठीक है, इस तरह से। अब जो है हमें उसमें से अब सिर्फ क्या है, उसमें गिफ्ट्स, इनर टैलेंट्स, ठीक है। माँ लक्ष्मी इज़ कॉलिंग माँ लक्ष्मी, माँ खगास्त्र, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती। तो जितने भी अब इनर टैलेंट्स और इनर विजडम है वो हमें फिर रिवील होते हैं, ठीक है। फिर जब हमें वो रिवील हो जाते हैं, फिर हमें सारे जो है चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि ठीक है, ये वाला चैलेंज जो है इस तरह से जो है मैं कौन हूँ की यात्रा होती है, कि हमें जो है जितने भी हमारी ज़िंदगी में चैलेंजेस होते हैं वो सिर्फ खुद को जानने के लिए होते हैं, ठीक है। तो कोई बाहर की चीज़ हम पे ना हावी ना होने पाए। तो अगर वो हावी हो गई तो हम कोई भी चैलेंज को ओवरकम नहीं कर पाएंगे, कोई भी टेस्ट को हम पास नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमें खुद से लगना है, ठीक है, कि मैं कौन हूँ, ठीक है। और जब तुम ये खुद जान लो तो इसलिए यही वाली यात्रा को खुद से शेयर करना है, सो दैट कि अगला भी जान सके उसके, क्योंकि उसकी सोल में भी वही गिफ्ट्स हैं, क्योंकि न्यू सोल कॉन्शियसनेस अब क्या है, न्यू वननेस, ठीक है। वी ऑल आर वन, ठीक है। तो सोल में हर एक की सोल में कुछ उसके गिफ्ट्स हैं, हर एक की सोल के अंदर। उसको सिर्फ अपने गिफ्ट्स को अनलॉक करना आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही वो अनलॉक हो जाते हैं तो फिर जो है ना तुम्हारी क्या है, 3 ऑफ कप्स हो जाती है तुम्हारी सोल। सोल इज़ इन अबंडेंस, ठीक है। मेरे अंदर तो सारा सुख है, मुझे अब मेरे को कुछ बाहर चाहिए ही नहीं, क्योंकि मैंने अब खुद को जान लिया। क्योंकि ये जितनी भी सारी बाहर चीज़ें हैं ये सब हमारे लिए हैं गाइस, ठीक है। धरती, माँ, यूनिवर्स, प्लैनेट, सोल, ये सब हैं हमारे लिए, खुद को जानने के लिए। जब मैंने खुद को जान लिया, ठीक है, तो मुझे बाहर किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, तुम्हारी सोल इज़ इन पीस, ठीक है। माई पीस इज़ नॉन नेगोशिएबल, माई हैप्पीनेस इज़ ऑन द टॉप, ठीक है। अब तुम्हें यू आर अनस्टॉपेबल, यू आर अनबीटेबल, ठीक है, बिकॉज नाउ यू नो दैट आई एम सॉरी हाउ टू मैनिपुलेट द नेगेटिव एनर्जी इनटू द पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है। वाई यू नो दैट, बिकॉज दैट्स व्हाट यू डिड, ऑलराइट। तुमने इसको जाना कि नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में कैसे हम क्या कर सकते हैं, हाउ टू मैनिपुलेट, ओके, नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में हमें कैसे एल्केमाइज करना है, कैसे ट्रांसेंड करना है, ठीक है। जब हम ये ट्रांसेंड करते रहते हैं तो एक तरह से हमारी सोल की क्लेंजिंग, अब क्या अब हम जो है अपनी फ्रीक्वेंसी को टैप इन होके अब हम क्या कर रहे हैं, मदर गाय की वाइब्रेशंस को रेज कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंग्रोव्स, ठीक है, मैंग्रोव्स भी यही कर रहे हैं, अपनी रूट से बहुत सारा CO2 स्टोर कर लेते हैं और फिर धीरे धीरे धो के मारते हैं वो बाहर, ठीक है, ऑक्सीजन फैलाते हैं, ठीक है। तो दैट्स व्हाट द मैंग्रोव्स डू। फिनिक्स इज राइजिंग अप फ्रॉम द एशेस, फील द फीलिंग ऑफ राइजिंग स्टार, ओके, बिकॉज यू आर अ स्टार नाउ। स्पेशल थैंक्स टू द स्टार गार्जियन एंजल्स, ठीक है। तो गाइस मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जितने भी ब्रह्मांड में अब जितने भी लोग हैं, अगर उनकी ज़िंदगी में कोई भी चैलेंज आ रहा है तो उसका जवाब कहाँ पर है गाइस, तुम्हारे अंदर, ठीक है। ये जितनी भी बाहर चीज़ें नज़र आ रही हैं, प्लांट्स, ट्रीज़, ये सब हमारे लिए बनी है, ठीक है। ये हमसे ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, बस सिर्फ इस चीज़ का हमें एक ध्यान रखना है। ये जितनी भी सारी बाहर चीज़ें हैं ये हमसे बड़ी नहीं हैं, ठीक है। ये सब है हमारे लिए, ये सब है खुद को जानने के लिए, ठीक है। कभी भी अगर ये हमसे बड़ी हो जाए तो तुम गलत दिशा में जा रहे हो, वहीं पे एक पॉज लगा दो और जो है डीप ब्रीदिंग, अपनी ब्रेथ से जुड़ने की कोशिश करो। अगर कहीं तुम्हें ये लगे कि ये बाहर की चीज़ें मुझ पे ज़्यादा हावी हो रही है, ये मुझसे बड़ी हो गई, तो वहीं पे रुक जाओ, ठीक है। तुरंत वहीं पे बैठ जाओ अपने स्थान पे, ठीक है। ध्यान लगाना शुरू कर दो, ठीक है। ध्यान लगाओ और खुद को जानने की कोशिश करो, ठीक है। ओम की चैंटिंग करो, ठीक है। उसके बाद ओम ध्यान लगाओगे तो यहाँ पे 3rd आई चक्रा पे ओम की चैंटिंग करो, ठीक है। और ये जो यूनिवर्सल लॉज हैं ये किस तरह से काम करते हैं गाइस, यूनिवर्सल लॉज कैसे काम करते हैं, तुम्हारे वर्ड्स, ठीक है। जितना बोलना है उतना ही बोलो,
अगर तुमने, क्योंकि यूनिवर्स क्या है, वर्ड्स, मैंने बताया ना, नंबर्स इज इक्वल टू, नंबर्स हैज़ लिमिटलेस पोटेंशियल, ठीक है। तो लिमिटलेस पोटेंशियल, अगर तुमने किसी को गलत बोला तो फिर वही लिमिटलेस कर्मा तुम्हें भोगना भी पड़ेगा उसका फल। इसीलिए थिंक बिफोर थिंक, ठीक है, दैट्स कॉल्ड माखगास्त्रा, ठीक है। अगर तुमने कुछ बोल दिया किसी को अच्छा और उसके बाद कुछ बुरा बोल दिया तो तुमने बेसिकली कुछ नहीं किया, यू डिड ज़ीरो, यू डिड माइनस, ठीक है। तुम कहीं के नहीं हो, ठीक है, तुम भटक रहे हो बेसिकली। तुम उतना ही बोलो जितना ज़रूरी है गाइस, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये है लॉ ऑफ कर्मा, ठीक है, ये है यूनिवर्सल लॉ, ठीक है। हम मेक श्योर कि हम धरती की बैलेंस को इम्बैलेंस ना करें, ठीक है, बिकॉज नंबर्स में क्या है, लिमिटलेस पोटेंशियल, न्यूमेरिकल वाइब्रेशंस, ठीक है। सा इज इक्वल टू नंबर 19, ठीक है। तो जितना ज़रूरी है बस उतना ही, इससे ज़्यादा एक वर्ड तुम्हारे मुंह से ना निकले, ठीक है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बी ऑब्जर्वर, बी थिंकर एंड ब्रेक द ब्लडी ओल्ड पैटर्न्स, ठीक है, जिनकी वजह से जो है यहाँ पे जो है लोग भटक रहे हैं, ठीक है। तो ब्रेक द ओल्ड पैटर्न्स, प्लांट द न्यू सीड्स, ओके, इन द DNA, so this is the right time to plant the new seeds, all right, because you are here to maintain a legacy, okay, for the next 50 generations, all right, so make sure कि इसका कोई उल्लंघन ना करें, क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा से गाइस कोई नहीं बच पाया है, ये धरती जो है इसी तरह से काम कर रही है, ठीक है, यूनिवर्सल लॉ। अगर तुम्हें अपने सारे चैलेंजेस को में पास होना है, इफ़ यू वांट टू पास ऑल द टेस्ट विच इज़ थ्रोन बाय द हायर कॉस्मिक एनर्जीज, हायर कॉस्मिक सुप्रीम डिवाइन पावर्स, सो मेक श्योर कि तुम इस लॉ का उल्लंघन ना करो जिस पे ये धरती माँ काम कर रही है और जिससे ये यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। दीज आर द यूनिवर्सल लॉज, लॉ ऑफ कर्मा, ठीक है। नहीं तो अच्छे कर्म का तुम्हें जस्टिस दिया जाएगा, अगर तुमने किसी को गलती से भी कुछ बुरा कह दिया तो तुम्हें उसका फल भोगना ही पड़ेगा, या तो इस जन्म में या तो किसी भी, उससे कोई नहीं बच पाया। लॉ ऑफ कर्मा, यूनिवर्सल लॉ से कोई भी नहीं बच पाया, ठीक है। अगर तुम्हें सारे टेस्ट क्लियर करने हैं, तुम चाहते हो कि विन फाउंड यू, सो मेक श्योर कि तुम इसका पालन सही तरीके से कर रहे हो, सटीक तरीके से, ठीक है। It's very very important guys, it's very important, okay, so make sure कि you intact with these laws, law of karma and the universal laws, ठीक है। अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई भी चैलेंज आ रहा है तो तुम्हें क्या करना है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तुम्हें उसके रूट कॉज तक जाना है, ठीक है। तुम्हें जो है सही तरीके से जुड़ना है बेसिकली, कि सही तरीके से जुड़ें कैसे हो, रूट कॉज तक कैसे जाएं, ठीक है। इसको जड़ से कैसे बाहर निकाल के फेंक दें कि ये चीज़ दोबारा ज़िंदगी में ना आए, ठीक है। तो मेक श्योर कि जो है हम घरों में क्या लगाना शुरू करें। घरों की सबसे पहले, अगर धरती की वाइब्रेशन को हमें बढ़ाना है तो हम क्या करें, कुछ तो स्वामी परमाहंस योगानंद की तस्वीरें लगाएं, ठीक है, या तो स्वामी विवेकानंद की तस्वीरें लगाएं घरों में, वहाँ पे पैसा खर्चें, ठीक है। ऊर्जाओं को, चेतना की शक्ति को रेज करने के लिए कुछ तो करें, ठीक है, कि अगर हम वॉक भी करें तो आसपास जो है सुंदर हमें तस्वीरें नजर आए और हम उनसे जुड़ें, उस शक्ति से जुड़ें, ताकि हम खुद को योग माया शक्ति जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, योग माया शक्ति से लगें, ठीक है। श्री कृष्णा जी इसी से लगे थे, योग माया शक्ति से, ठीक है, तब वो कृष्णा जी बने थे। हम ये जाने हम कृष्णा जी बने कैसे हैं, ठीक है। मंदिर का, अगर वैसे तो मंदिर होने नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो कि अगर सही टेक्निक को, ठीक है, किसी ने मंदिर लगा भी रखा है, इट्स ओके फाइन, ठीक है, लेकिन मंदिर तुम पे हावी ना हो जाए, ठीक है, इसका ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। कहीं मंदिर तो नहीं मुझ पे हावी हो गया, ठीक है। मैं खुद को जान रहा हूँ या जान रही हूँ, मेरा लक्ष्य है अपनी चेतना की शक्ति को बढ़ाना, ठीक है। तो ट्रांसेंडेंस, ओके। तो अपने घरों में जो है कुछ, अपने घर को आर्ट गैलरी में तब्दील करने की कोशिश करो, ठीक है, क्योंकि बिकॉज यू आर अ क्रिएटर, तुम्हें शक्ति है कुछ नया क्रिएट करने की, ठीक है। कुछ ऐसी हाई प्रोफेशनल एनर्जी से जुड़ो, ठीक है, जैसे कि कुछ स्वामी परमाहंसानंदा योगानंदा, स्वामी मुकुंदानंदा, ठीक है, कुछ स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती, इनकी जो तस्वीरें जो है अपने इनसे जुड़ो, इन पे पैसा खर्चो, कुछ डायरियाँ लगाओ, कुछ पेन लिखो, ठीक है, कुछ अच्छी पुस्तकें, नई पुस्तकें ला के पढ़ो। रोज़ एक ही पुस्तक पढ़ने का कोई मतलब नहीं है गाइस,
हमें उसके मतलब ही नहीं समझ में आ रहे। मुद्दा हमारा ये होना चाहिए हम खुद को जाने, ठीक है। अगर हमने खुद को जान रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम खुद को नहीं जान रहे हैं तो तुम खुद को जानना शुरू करो फिर, ठीक है। तुम्हारा यही लक्ष्य होना चाहिए कि मैं खुद को जानूँ, मैं हूँ कौन, ठीक है। क्योंकि मेरी भी सोल के अंदर बहुत सारे गिफ्ट्स छुपे हुए हैं। मेरा मुद्दा होना चाहिए उन गिफ्ट्स को अनलॉक करना, ठीक है। अनलॉक करके मैं भी जो है, मेरा शरीर भी जो है एक क्या, एक पीसफुल की स्टेट में आ जाए कि माई पीस इज़ नॉन नेगोशिएबल, ठीक है। माई हैप्पीनेस इज़ ऑन द टॉप, ठीक है। तो इसको फॉलो करो, फॉलो दीज गाइडलाइंस गाइस, ऑलराइट। तो हमने आज ये थोड़ा सा समझा कि कैसे कैसे मंदिर आए और कैसे कैसे ये मंदिर जब लोगों पे हावी हुए तो स्पिरिचुअल मास्टर्स आए और फिर उन्होंने हमें सिखाया कि ध्यान ही एक ऐसा लक्ष्य है, डीप ब्रीदिंग, प्राणायाम। तभी ये चीज़ें गाइस आजकल की डेज में क्यों इम्पॉर्टेंट हैं, बढ़ रही हैं, क्योंकि यही सच्चाई है, दिस इज़ द ट्रुथ, ठीक है। तो सच्चाई से लोग जो हैं अब जुड़ना स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे इंसान सच्चाई से जुड़ता है वैसे वैसे जो है वो वेदास की तरफ बढ़ता है फिर, ठीक है। उसको समझ में आता है कि वेद क्या है, ठीक है। और हमें कैसे जो है अपनी सोल को क्लेंस करके जो है सारे कर्मा को क्लियर करके जो है हम मोक्ष से परे चले जाएं, ठीक है। जहाँ पे फिर हम जो है एक, बिकॉज यही जो है एंजलिक सोल्स जो होती हैं वो उनका जो लक्ष्य होता है बेसिकली यही होता है धरती पे आने का, ठीक है ना, कि वो दूसरों तक ये नॉलेज को स्प्रेड कर सकें, ठीक है। सो दैट अदर्स विल ऑल्सो रिवील देयर गिफ्ट्स, अदर्स विल ऑल्सो अनलॉक देयर इनर विजडम एंड टैलेंट्स, जो कि उसकी सोल में छुपे भरे पड़े हैं, ठीक है। हर सोल में ये भरे पड़े हैं, ठीक है। बस हमें सिर्फ इसे अनलॉक करना है, दैट्स इट, ठीक है। सो दैट्स इज द माइंड बॉडी स्पिरिट का बैलेंस, ठीक है ना। सो गाइज ये चीज़ें जो है करनी बड़ी ज़रूरी हैं, ठीक है। तो अद्वैत वेदांता स्वामी सर्वा प्रियानंदा एंड ये जितनी भी जो योग माया शक्ति से जुड़ी चीज़ें हैं, मोटिवेशनल स्पीकर, ठीक है, द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, ठीक है, द पावर ऑफ गोल्डन लाइट, द वाइट लाइट, तो ये सब चीज़ें जो हैं हमें ये सिखाती हैं कि हम खुद से कनेक्ट हों, ठीक है, कि बाहर की चीज़ें हम पे ना हैवी हो जाएं, ठीक है। बिकॉज वी आर द लाइट सीयर्स, वी आर द स्पिरिचुअल बींग्स, वी आर द एंजेलिक realm, ठीक है। तो खुद से कनेक्ट होना और मेडिटेशन, ये सब। तो जिन घरों में ना, ठीक है, जिन घरों में बेसिकली ये चीज़ें इन योग माया शक्ति, इन शक्तियों से जो जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो क्या है एक, ठीक है। तो इन शक्तियों से बेसिकली हमें जो है इन शक्तियों को अवेकन करना है, ठीक है। ऐसा करके हम क्या कर रहे हैं, खुद को अवेक कर रहे हैं, हमारी सोल जो है अवेकन हो जाती है। फिर हम क्या क्या बोलते हैं, आई एम कुंडलिनी शक्ति, ठीक है। कुंडलिनी शक्ति क्या होती है गाइस, कि हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड के नीचे एक होता है रूट चक्रा, ठीक है, वहाँ पे ये शक्ति जो होती है क्या होती है, डॉर्मेंट, ठीक है। जब हम अपने चक्रास पे काम करते हैं ना गाइस, लम वम रम यम हम ओम आहा, ठीक है, तो फिर ये कुंडलिनी शक्ति वहाँ से अवेकन हो जाती है। तो इसलिए हम बोलते हैं जब हम कोई स्पिरिचुअल मास्टर ये बोलता है ना वो तो अवेकन सोल है, तो अवेकन सोल कैसे, क्योंकि उसकी वो जो स्पाइनल कोड से ऐसे वो ऐसे घूम के, ठीक है, ऐसे वो शक्ति जो है नीचे से अवेकन होती है, ठीक है। और फिर तुम्हारे ऐसे क्राउन चक्रा से ये ऐसे ऊपर जाके फिर हायर डैम से तुम्हें मैसेजेस मिलते हैं, ठीक है। सो इसलिए बोलते हैं कि उसकी कुंडलिनी शक्ति अवेकन हो गई, ठीक है। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस समथिंग, ऐसा कुछ नहीं है, इसको समझना पड़ता है, ठीक है। बिकॉज स्पिरिचुअलिटी इज प्रैक्टिकलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी इज स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। इट्स एवरीथिंग इज लॉजिकल, डिवाइनली बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कर्मा, बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल लॉज, ठीक है। तो हमें अपनी सोल को अवेकन करना होता है, ठीक है। जैसे ही ये शक्ति अवेकन हो जाती है तो तुम्हारे जो है चक्रास भी जो है अलाइन हो जाते हैं, तब तुम चक्रा हीलर बन जाते हो, एनर्जी हीलर बन जाते हो। तुम किसी भी एनर्जी के काम से जुड़ के उसको समझ पाते हो और कुछ नया क्रिएट कर पाते हो, ठीक है। तो दैट इज़ दैट्स ऑल अबाउट द कुंडलिनी शक्ति, ठीक है। और जैसे ही अवेकन हो जाती है तो तुम क्या बन जाते हो, हाई प्रेस्टेस, ठीक है। बिकॉज नाउ यू हैव द एनहांस्ड इंट्यूशन पावर्स, ठीक है। अब तुम्हारी जो इंट्यूटिव पावर्स हैं वो सुपर हाई हैं, उसको कोई बीट नहीं कर सकता, ठीक है। बिकॉज इट इज़ सुपर ब्लेस्ड एंड स्पिरिचुअली गाइडेड एंड स्पिरिचुअली डिवाइनली प्रोटेक्टेड एंड
अब ये क्या है, अनस्टॉपेबल और अनबीटेबल, ठीक है, क्योंकि अब इसको पता है कि इसके इंट्यूशन को, इसको कैसे और कहाँ पे कैसे यूज़ करना है और क्या तो नया क्रिएट करना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द कुंडलिनी शक्ति, ठीक है। ध्यान, मेडिटेशन, ठीक है, ये सब चीज़ें जो है, डीप ब्रीदिंग, ठीक है, और डीप ब्रीदिंग करके चक्रास बैलेंसिंग, ठीक है, चक्रा हीलर, और यू नो ऑरेकल की एनर्जी से जुड़ना, ठीक है, चक्रा हीलिंग करना, और यू नो मंत्रा चैंटिंग, मैनिफेस्टेशन पावर, विजुअलाइजेशन पावर। सो दीज ऑल आर द टेक्निक्स, स्पिरिचुअल डिकोडिंग, ठीक है, हमने सीखा था स्पिरिचुअल टेक्निक्स के सारे स्टेप्स हमने सीखे थे, वी डिड द ट्रांसेंडेंस, ओके। सो ये सारी चीज़ें जो हैं गाइस, इट्स ऑल अबाउट द स्पिरिचुअल लर्निंग का, स्पिरिचुअल पाथ, ठीक है, बिकॉज वी आर ऑन द स्पिरिचुअल पाथ नाउ, ठीक है, वी आर फॉलोइंग आवर स्पिरिचुअल पाथ, ओके। सो मेक श्योर कि यू नो ये, अगर तुम्हारे घरों में कोई भी ऐसा कोई चैलेंज आ रहा है तो तुम इनसे जुड़ो, ठीक है, जो तुम्हारा मन कर रहा है करो। मैंने तुम्हें इसका रीज़न बता दिया कि हर एक, तुम्हारा अगर मन कर रहा है मंदिर जाने का, तुम जाओ, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है, लेकिन वो बस तुम पे हावी ना हो जाए, ठीक है। तुम्हारा मुद्दा क्या होना चाहिए, अपनी चेतना की शक्ति को बढ़ाने का, ठीक है। फिर तुम मंदिर से आ रहे हो घर पे आके, तो तुम ये देखो कि क्या मैंने, मेरी चेतना की शक्ति बढ़ी, क्या मैंने खुद को जाना, ठीक है। अगर तो जान रहे हो तो दोबारा चले जाओ मंदिर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, जाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है मंदिर जाने की, ठीक है, क्योंकि इससे तुम्हें हेल्प हो रही है, जिससे तुम्हें हेल्प हो रही है वो तुम करो, वो चीज़ तुम पे ना हावी हो जाए, ठीक है। मेक श्योर कि तुम खुद को जान रहे हो, ठीक है। तो अगर तुम खुद को जान रहे हो तो बहुत ही बढ़िया, और अगर तुम खुद को नहीं जान रहे हो, सो प्लीज़ अप्लाई सम अदर टेक्निक, कोई और दूसरी टेक्निक अपनाओ, ठीक है, क्योंकि मुद्दा क्या होना चाहिए तुम्हारा, खुद को जानने का, ठीक है। फिर आते हैं कोई भी स्पिरिचुअल मास्टर्स या तुम फिर हाई टेक्निक पे जाओ। अगर तुम्हें मंदिर से नहीं समझ में आ रहा, देन फॉलो सम हाई टेक्निक, ठीक है। हमें कोई ये चीज़ नहीं समझ में आती तो हम दूसरी चीज़ का सहारा लेते हैं, दूसरी चीज़ से सहारा हमें नहीं समझ में आ रही, फिर हम ऊपर जाते हैं, तीसरी चीज़ का सहारा। मेक श्योर कि हम नीचे ना धंसें, हम नीचे तो नहीं जा रहे कहीं, ऊपर ही जा रहे हैं ना, मेक श्योर, ठीक है। तो ये जो है चेक करना, ये तुम्हारा कर्तव्य है, हर आत्मा की अपनी एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। सो टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टेक द अकाउंटेबिलिटी ऑफ योर सोल अवेकनिंग जर्नी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, ठीक है। अपनी अकाउंटेबिलिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये तुम्हारी सोल यात्रा है, लाइफ इज़ अ जर्नी, इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन, ठीक है। ज़िंदगी क्या है, एक यात्रा, ठीक है। तो इस यात्रा में हर कोई पास होना चाहता है, और हर कोई पास होना चाहता है, और पास कैसे होगा, जब वो खुद को जान लेगा। मेक श्योर कि मैं हर दिन खुद को कुछ ना कुछ जान रहा हूँ। खुद को मैंने जाना क्या, अगर मैंने खुद को जाना तो मेरा अगला दिन जो है बहुत ही, मैंने खुद को कुछ तो अचीव किया, ठीक है। अब मैं जो है, आई एम ऑन अ स्टेपिंग स्टोन, अब जो है मैं, ठीक है, अब मैं बन गया स्टेपिंग स्टोन, ठीक है, अब मैं ये बन गया, ठीक है। टैरो जैसे मैंने, अभी मैं टैरो से क्या सीख रही हूँ कि अब मैंने क्या अचीव किया, मैं क्या बन गई, ठीक है। तो जब अगला दिन शुरू हो तो तुम ये देखो कि हाँ, कि क्या मैं कुछ बना, क्या मैंने कुछ अपनी सोल, जो मैं इस धरती पे करने आया, बिकॉज लाइफ इज़ अ जर्नी, इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन, हमने कहीं पे पहुंचना नहीं है, ठीक है, हमने खुद को जानना है, ठीक है। तो क्या मैंने खुद को जाना पिछले दिन से, अगर तो मैंने खुद को जाना तो मैं कुछ कर रहा हूँ, अदरवाइज आई एम ज़ीरो, आई एम माइनस, ठीक है, मैं भटकन हूँ, ठीक है। तो मेक श्योर कि हम भटकन तो नहीं है कहीं, ठीक है। तो यही हमारा क्वेश्चन होना चाहिए गाइस। यहीं पे मैं ये वीडियो को एंड करूँगी। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, ठीक है, और ये वीडियो जितना भी हो सके दूसरों के साथ शेयर करो गाइस, ठीक है, क्योंकि अभी जो है इस विद्या की ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। और जैसे ही तुम, और सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को, ताकि जो है तुम्हें फ्यूचर में जितने भी मैं वीडियोज़ डालूँ उन सब की नोटिफिकेशन तुम्हारे पास पहुँचती रहे, ठीक है। And share it with your friends and family guys, okay. So keep watching my channel, which is Shiv Shakti Karita Dolvan Tarot, and so I come up with the next content very soon. जैसे ही मेरे पास कुछ content आता है तो मैं बना के जो है यहाँ पे पोस्ट कर दूँगी, ठीक है। कोई भी कमेंट हो, कोई भी फीडबैक हो, प्लीज़ लिख दो, ठीक है, आई एम ओपन टू दैट एंड देन आई विल सी एंड रिप्लाई इट बैक, ऑलराइट। सो टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू गाइज, एंड एन्जॉय योर सोल अवेकनिंग जर्नी। खुद को जानो और जो है निरंतर इसी तरह प्रफुल्लित और प्रसन्न रहो और आगे बढ़ते रहो, ठीक है। यही है जीवन का लक्ष्य, ठीक है। दैट्स व्हाट अबाउट लाइफ इज़, ठीक है। लाइफ एक यात्रा है, इसको कभी मत भूलो।
कोई यहाँ पे हमें कोई डेस्टिनेशन यहाँ पे अचीव नहीं करनी, हम यहाँ पे धरती पे अपना परमानेंट घर बनाने नहीं आए हैं गाइस, ठीक है। लाइफ इज़ अ जर्नी, ओके। मेक श्योर कि इस पे जो है तुम्हारा इंटैक्ट रहे। लाइफ इज़ अ जर्नी, और जर्नी कैसी जर्नी? खुद को जानने की यात्रा, ठीक है। तो अगर हम खुद को जान रहे हैं तो हम सही दिशा में हैं। अगर हम खुद को नहीं जान रहे हैं तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें अप्लाई करो अपने ज़िंदगी में, और ख़ुद को अपने जो भी तुम्हारे सोल के अंदर गिफ्ट्स छुपे हुए हैं उनको रिवील करने की कोशिश करो, ठीक है। हैप्पीनेस इज़ इनसाइड यू गाइस, इट्स नॉट आउटसाइड, एवरीथिंग इज़ इनसाइड यू, ओके। पीस इज़ इनसाइड यू, पीस इज़ इनसाइड योर सोल, ओके। सो प्लीज़ try to awaken all of these gifts, okay, which is inside you. So thank you for watching this video once again. Take care, God bless you. Bye bye guys.